Hello, welcome back once again in microcontrollers and application subject. So we are in a second chapter, instruction set and programming. And in the last lecture, we have seen some programs of assembly language programs of multiplication, division, and logical operations. Now today also we are going to continue in this assembly language program. But here the assembly language program is of some different loop type. We have seen the instructions of 8051 microcontrollers such as DJ and Z, decrement jump if not 0, compare jump if not equal. So such instructions are used in a program where looping is required, where some loop is required in the program. So today we are going to see those programs where the loop is used, means the instruction where decrement jump if not 0 or compare jump if not equal to instructions are used. So today's our learning objective is write assembly language program to perform control and looping operation. So today we have to perform the assembly language program in order to perform control and looping operations. At the end of the lecture, you must be able to provide the answer of the program, such as write a program to find largest number in a given set of 5 numbers, write a program to find smallest number in a given set of 5 numbers, write a program to arrange the given data in ascending order or similarly in descending order, write a program to find sum of 5 numbers stored in consecutive memory locations. So all such programs where these are the programs where looping is required, means some loop kind of program is required in this particular kind of problem statement. So today we are going to see such problem statement, such programs in where the looping is required. So this is the first program and it is the program also of your experiment of your manual. So we are going to see the similar type of programs also in our practical session also. So I am explaining this program very well before only because at the time of experiment we just only going to execute this instruction. Okay, so these all are the programs of your practical also, experiment also. The first program to transfer a block of 10 data bytes is stored from memory location 30H to memory location starting from 50H. Now here in this program, the program is asking to transfer a block of 10 bytes. Block of 10 bytes means what? Means from memory location, taking a 10 memory location byte that is to be transformed from one place to the another place. बात समझ में आ रही, क्या बोलने की कोशिश कर रहे इधर पे? तो ये प्रोग्राम में क्या बोला जा रहा है कि ये प्रोग्राम में आपको एक मेमोरी लोकेशन का डेटा दूसरे मेमोरी लोकेशन में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। और वो जो डेटा जो है वो सिर्फ 1 बाइट का नहीं है, 10 बाइट का है, यानी 10 मेमोरी लोकेशन का है। तो इसके लिए क्या बोला गया? ब्लॉक ऑफ 10 बाइट्स, ब्लॉक ऑफ 10 डेटा बाइट्स। तो ब्लॉक ऑफ 10 डेटा बाइट्स मतलब 10 मेमोरी लोकेशन के डेटा को एक जगह से उठा के दूसरी जगह के मेमोरी लोकेशन पे भेजना है, दूसरी जगह के 10 मेमोरी लोकेशन पे भेजना है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, जो मेमोरी लोकेशन स्टार्टिंग है वो क्या है? 30H। तो 30H का डेटा आपको उठा के कहाँ पे भेजना है? 50H पे। उसी तरीके से जो नेक्स्ट जो डेटा बाइट होगा 30H के बाद जो दूसरा डेटा बाइट होगा वो कहाँ पे होगा? 31H। तो 31H का डेटा उठा के आपको भेजना रहेगा 51H। 32 का भेजा 52, 32H का डेटा 52। तो ऐसे ही आपको टोटल कितने बाइट्स का डेटा ट्रांसफर करना है? 10 डेटा बाइट्स का। तो 10 डेटा बाइट्स का डेटा आपको जो ट्रांसफर करना है, तो यार आपका 30H से लेके शुरू होगा, तो 30H से लेके 39H मेमोरी लोकेशन तक के जो डेटा है उसको आपको भेजना है, ट्रांसफर करना है 50H से लेके 59H। बात समझ में आ गई? इसके लिए उसको बोलते हैं ब्लॉक ट्रांसफर। क्या बोलते हैं ये प्रोग्राम को? ब्लॉक डेटा ट्रांसफर। यानी ब्लॉक हो गए ना, अब 10 मेमोरी लोकेशन, तो एक मेमोरी लोकेशन होता तो खाली नॉर्मल मेमोरी बोलते हैं, नॉर्मल मेमोरी ट्रांसफर डेटा बोलते हैं। लेकिन ब्लॉक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपको एक साथ 10 मेमोरी लोकेशन का डेटा एक जगह से दूसरी जगह 10 मेमोरी लोकेशन पे भेजना है। तो इसके लिए उसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ 10 बाइट्स। तो ये ब्लॉक ट्रांसफर प्रोग्राम से बहुत मशहूर है, ये आपके मैनुअल में भी है। तो कैसा है देखो प्रोग्राम, इसका स्टार्ट किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? org 0000H, मतलब यू आर राइटिंग योर प्रोग्राम फ्रॉम फर्स्ट मेमोरी लोकेशन, इनिशियलाइजिंग योर प्रोग्राम फ्रॉम फर्स्ट मेमोरी लोकेशन दैट इज 0000H। तो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन से आप स्टार्ट करें।
फिर इसके बाद ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट नजर आएगा, मूव R0 कॉमा हैश 30H, यानी R0 रजिस्टर को आप इमीडिएटली किससे लोड कर रहे हो, 30H। क्यों 30H से लोड कर रहे हो, क्योंकि आपका जो सोर्स मेमोरी लोकेशन है, सोर्स मेमोरी मतलब जहां से डेटा आपको लेना है, तो वो कौन सा है, 30H। तो आप R0 को एज अ पॉइंटर यूज करोगे, किसको पॉइंट करने के लिए, सोर्स मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करने के लिए। तो सोर्स मेमोरी एड्रेस क्या है आपका, 30H, इसलिए R0 में आप इमीडिएटली क्या लोड कर रहे हो, 30H, इसलिए कमेंट में भी लिखा हुआ है सोर्स मेमोरी पॉइंटर। फिर इसी के बाद आप ध्यान से देखोगे तो नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन आपको नजर आएगा, मूव R1 कॉमा हैश 50H। तो R1 में आप क्या लोड कर रहे हो, 50H लोड कर रहे हो। क्यों, क्योंकि आपको डेस्टिनेशन जहां पे पहुंचाना है उसका मेमोरी लोकेशन क्या है, स्टार्टिंग मेमोरी लोकेशन क्या है, 50H। तो आप R1 को एज अ पॉइंटर यूज करोगे, किसके लिए, डेस्टिनेशन एड्रेस को पॉइंट करने के लिए। R0 किसको पॉइंट करेगा, सोर्स मेमोरी लोकेशन को, और R1 किसको पॉइंट करेगा, डेस्टिनेशन मेमोरी लोकेशन को। तो इस तरीके से आपने दो पॉइंटर बना दिए, R0 और R1। R0 में 30H डाल दिए, R1 में 50H डाल दिए। नाउ ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब भी आपके पास कभी जब गिनती वाला काम आता है ना, काउंटिंग वाला काम आता है, तो आपको एक रजिस्टर को एज अ काउंटर यूज करना पड़ता है, क्योंकि आपको काउंट करना है ना, टोटल कितने बाइट्स को ट्रांसफर करने बोला गया है प्रोग्राम में, 10 बाइट्स को ट्रांसफर करने के लिए बोला गया है। तो आपको 10 काउंट करने के लिए एक काउंटर को भी यूज करना है, यानी 10 काम हो गया, 10 बार हो गया तो वैसे ही स्टॉप हो जाना चाहिए, जब तक 10 बार नहीं हुआ तब तक वो काम करते रहना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, एक रजिस्टर को एज अ काउंटर यूज करना पड़ता है। इसलिए हम लोग ने यहाँ पे जो काउंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन से रजिस्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं, R7। हमेशा R7 आपका एज अ मोस्टली काउंटर के लिए यूज किया जाता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि R7 को ही काउंटर के लिए यूज करना है। आप R3 को भी ले सकते हो, R4 को भी ले सकते हो, R5 को भी ले सकते हो। तो आपके पास R3 to R7 सारे रजिस्टर्स अवेलेबल है जिसको आप एज अ काउंटर बना सकते हो। तो यहाँ पे मोस्टली जो प्रोग्राम में जो यूज होता है वो R7 को एज अ काउंटर पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे R7 रजिस्टर है, उस R7 में आप क्या लोड कर रहे हो, इमीडिएटली 0AH ए मतलब क्या, हेक्साडेसिमल का ए है, तो डेसिमल का कितना होता है, वो 10 होता है। तो डेसिमल का 10 होता है, हेक्साडेसिमल का ए होता है, इसलिए आपने R7 में इमीडिएटली 10 के हिसाब से आपने उसको लोड करके रखे। यानी ये जो काउंटिंग पर्पज के यूज होगा तो कितने को काउंट करेगा, 10 को काउंट करेगा, क्योंकि आपके प्रोग्राम में जो टास्क दिया गया है वो कितने बाइट को डेटा ट्रांसफर करने के लिए बोला गया है, 10 डेटा बाइट्स को। अगर यही बोला होता प्रोग्राम में 5 डेटा बाइट्स, तो हम लोग यहाँ पे R7 को लोड करते 05H से। हम लोग यहाँ पे किससे लोड करते हैं उसको, 05H से, क्योंकि 5 ही डेटा बाइट का ट्रांसफर करना होता। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला गया 10 डेटा बाइट्स, इसलिए आप R7 को एज अ काउंटर यूज कर रहे हो काउंट करने के लिए। तो इसके लिए आपने उसको इनिशियलाइज किए, कितने के हिसाब से लोड किए, 0A के हिसाब से लोड किए, यानी 10 के हिसाब से लोड किए। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क चल रहा है जो अपना ब्लॉक ट्रांसफर का काम है। आपको कहाँ से कहाँ डेटा ट्रांसफर करना है, 30H मेमोरी लोकेशन से कहाँ पे भेजना है, 50H पे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करोगे, मूव ए कॉमा @R0, यानी R0 जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसका डेटा कहाँ पे कॉपी होना चाहिए, एक्यूमुलेटर में। तो R0 किसको पॉइंट कर रहा है, 30H को। तो 30H में जो डेटा है वो डेटा अभी किधर पे आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में। तो आपका फर्स्ट जो डेटा है वो सोर्स मेमोरी लोकेशन से कहाँ पे आ चुका, एक्यूमुलेटर में आ चुका। फिर इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आप क्या लिख रहे हो, मूव @R1 कॉमा ए, यानी अब एक्यूमुलेटर से आपका डेटा किधर पे जाना चाहिए, जिधर R1 जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो R1 कौन से मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, आपने R1 को किससे लोड करके रखा है, 50H। तो आपने क्या किए, एक्यूमुलेटर का डेटा अब उठा के आपने कहाँ पे भेज दिए, जिधर R1 पॉइंट कर रहा है। तो R1 किधर पॉइंट कर रहा है, 50H पे पॉइंट कर रहा है। तो ये आपका टास्क हो गया। आपने क्या किए, 30H से डेटा को उठा के आपने क्या किया, एक्यूमुलेटर में लाए, और एक्यूमुलेटर से उठा के आपने 50H मेमोरी लोकेशन पे डाल दिया। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आप लोग को उठ रहा होगा कि नहीं उठ रहा होगा, जरा मैं जानना चाहता हूँ कि सर इतना घुमा के क्यों करने का, वहां से मेमोरी लोकेशन से एक्यूमुलेटर में लाओ, एक्यूमुलेटर से फिर यहाँ पे भेज दो। क्या हम लोग डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकते थे, मूव 50H, 30H? ये तो हम लोग पढ़ चुके ना, डायरेक्ट एड्रेसिंग बोर्ड, यानी 30H का डेटा 50H में चला जाए। तो वो अगर सिर्फ आपको एक ही बाइट का डेटा ट्रांसफर करना होता तो हम लोग लिखते। यहाँ पे आपको कितने का बोला गया है, 10 का बोला गया है। तो 10 के लिए हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे, मूव 30H, 50H, मूव 51H, 31H, मूव 52H, 32H।
ऐसा इतना लंबा प्रोग्राम नहीं लिखना है, 10 डेटा बाइट करना है तो 10 के लिए 10 मेमोरी लोकेशन का ऐसा करना है। हमको ऐसा प्रोग्रामिंग लिखे कि हमारा काम वो ऑटोमेटिक चलता रहे, लेस इंस्ट्रक्शंस में काम होना चाहिए, लेस इंस्ट्रक्शन में। यहाँ पे 10 क्या आप 100 भी लिखो तो 100 का भी हो जाएगा, समझे। तो हम लोग को इंस्ट्रक्शंस लेस यूज करना है, अपना टास्क अचीव करना है। तो इसके लिए ये सब पॉइंटर का इस्तेमाल करके हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी तक हमारा काम क्या हुआ, हम लोग ने काम क्या किए, 30H का डेटा एक्यूमुलेटर में लिए और एक्यूमुलेटर से डेटा उसको 50H में पहुंचा दिए। तो फर्स्ट डेटा बाइट सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया। अब आपको नेक्स्ट में जाने का है, नेक्स्ट में जाना है यानी नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का डेटा उठा के आपको नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे भेजना है, यानी 31H का डेटा आपको 51H में भेजना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट R0। तो R0 को आपने इंक्रीमेंट किए तो R0 में क्या था आपका 30H, 30H से क्या हो जाएगा वो 31H हो जाएगा। सिमिलरली आपने फिर डेस्टिनेशन एड्रेस को भी बढ़ाए, सोर्स मेमोरी को बढ़ाए, आप उसी तरीके से डेस्टिनेशन मेमोरी को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो डेस्टिनेशन मेमोरी आपका क्या था, किस में था, R1 में। R1 में कितना था 50H, तो आपने R1 को भी इंक्रीमेंट कर दिया 1 से, तो 50H से कितना हो जाएगा वो 51 हो गया। यानी अब दोनों भी क्या हो गए, नए मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट करेंगे। R0 जो आप पॉइंट करेगा वो किसको पॉइंट करेगा 31H को, और R1 जो पॉइंट करेगा अब वो किसको पॉइंट करेगा 51H को। फिर देखो आपने यहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन लेके आए जो लूपिंग वाला इंस्ट्रक्शन है, जो लूप का काम कर रहा है। आपने यहाँ पे क्या किए, DJ&Z R7। तो DJ&Z R7 का मतलब क्या होता है, मैं इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा चुका था। D स्टैंड फॉर डिक्रीमेंट, J एंड Z स्टैंड फॉर जंप इफ नॉट जीरो। किसका, R7 का। तो आप सबसे पहले क्या कर रहे हो, डिक्रीमेंट कर रहे हो किसको, R7 को। तो R7 में आपने कितना लोड करके रखे थे, 10 लोड करके रखे थे, तो एक मेमोरी लोकेशन का बाइट ट्रांसफर हो गया। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या किया, डिक्रीमेंट किए। तो अब ये 0A से कितना हो जाएगा, 09 हो जाएगा, ठीक है। 10 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। डिक्रीमेंट किया आपने, किसको डिक्रीमेंट किया, R7 को। और साथ ही साथ में क्या कर रहे हैं, जंप इफ नॉट जीरो। जंप करना चाहिए अगर वो नॉट जीरो है तो। जाहिर सी बात है, जब 0A था तो 0A से 1 से डिक्रीमेंट होकर कितना होगा, 09 होगा। तो क्या वो 0 हुआ, क्या नहीं हुआ। तो जंप इफ नॉट जीरो, तो वो क्या करेगा, जंप करेगा। तो आप कॉमा डाल के देखो, लेबल लिख रहे हो, चाहे तो आप एड्रेस भी लिख सकते हो, लेबल लिख सकते हो, कहाँ पे आपको जंप कराने का है। तो आप जंप किधर पे करा रहे हो, अप। ये अप लिखा हुआ है, यही लूपिंग होता है। ये लूप का मतलब ये होता है कंटिन्यूसली चलने का काम, कंटिन्यूसली काम जो चलता रहे। तो आपने क्या किए, डिक्रीमेंट किए, जंप इफ नॉट जीरो R7। तो आपने किसको डिक्रीमेंट किए, R7 को डिक्रीमेंट किए। तो R7 पहले 10 था, 10 से कितना हो गया, 9 हो गया। 9 हुआ तो क्या वो 0 हुआ था क्या, नहीं 0 नहीं हुआ। तो क्या करना चाहिए, उसको जंप करना है नॉट जीरो पे। तो नॉट जीरो ही है तो जंप करेगा कहाँ पे, अप। तो आप कहाँ पे आ गया, अब ये इंस्ट्रक्शन वापस से एग्जीक्यूट करेगा। तो ये इंस्ट्रक्शन वापस से अब एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ से आपका इंस्ट्रक्शन वापस से एग्जीक्यूट होगा। तो वापस से क्या होगा, मूव A,@R0। अब R0 जिसको पॉइंट कर रहा है उसका डेटा कहाँ पे लेके आएगा, एक्यूमुलेटर। तो R0 किसको पॉइंट कर रहा था, 31 का डेटा कहाँ पे आ गया, एक्यूमुलेटर। फिर एक्यूमुलेटर का डेटा कहाँ पे पहुंच जाएगा, जहाँ R1 पॉइंट कर रहा है। R1 किसको पॉइंट कर रहा है अब 51H, तो 51H पे पहुंच गया, यानी सेकंड डेटा बाइट ट्रांसफर हो गया। कहाँ से कहाँ तक का, 31H से 51H पे हो गया। फिर वापस से आप नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन के लिए बढ़ाओ, कितना बढ़ाओ, अब आपका ये 31 था तो 31 से 32 हो जाएगा। इंक्रीमेंट R1 51 था तो 51 से 52 हो जाएगा। फिर वापस से आप डिक्रीमेंट कर रहे हो R7 को, तो R7 वापस से डिक्रीमेंट हुआ, 9 के बाद कितना होगा 8। तो वापस से वो नहीं 0 है, 0 नहीं हुआ है, अभी तक 0 नहीं हुआ है, तो वापस से ऊपर जाएगा, फिर नेक्स्ट बाइट डेटा ट्रांसफर करेगा। अब जब लास्ट बारी आएगी, जब लास्ट डेटा बाइट ट्रांसफर होगा, तो ये 1 से डिक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगा 0। जब लास्ट डेटा बाइट ट्रांसफर हो जाएगा तो ये डिक्रीमेंट जंप इफ नॉट जीरो R7। तो ये जब डिक्रीमेंट करेगा, मान लो जब वो 01 था तो 01 से डिक्रीमेंट करके क्या हो जाएगा 00। तो जंप इफ नॉट जीरो, तो नॉट जीरो पे ही सिर्फ जंप करेगा। जैसे ही 0 हो गया तो वो जंप नहीं करेगा, आगे आएगा, प्रोग्राम को क्या कर देगा, एंड कर देगा। यानी जब लास्ट डेटा बाइट ट्रांसफर होगा, तो लास्ट डेटा बाइट जब ट्रांसफर हो जाएगा तो ये 01 से क्या हो जाएगा 00, यानी आपका R7 क्या हो जाएगा 00। तो ये स्टेटमेंट किस पे, जंप इफ नॉट जीरो पे। लेकिन अब वो क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, तो ये जंप नहीं करेगा। जंप इफ नॉट जीरो पे ही जंप करना था, जब 0 हो गया तो जंप नहीं करेगा, वो आगे आएगा, और आगे का प्रोग्राम क्या है, एंड है। तो इस तरीके से प्रोग्राम को एंड कर देगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हाउ द ब्लॉक ऑफ 10 बाइट डेटा इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन मेमोरी लोकेशन टू अनदर मेमोरी लोकेशन। तो ये प्रोग्राम में हमने क्या किए, 10 बाइट एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे भेजे, इसको बोलते हैं ब्लॉक ट्रांसफर। तो ब्लॉक ऑफ 10 बाइट्स वी हैव ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन मेमोरी लोकेशन टू अनदर मेमोरी लोकेशन। तो इसमें की इंस्ट्रक्शन कौन सा है जो ट्रांसफर का काम कर रहा है,
विच इज द की इंस्ट्रक्शन, की इंस्ट्रक्शन कौन से है जो आपके ट्रांसफर्स के काम कर रहे हैं? कोई बता सकता है मुझे? की इंस्ट्रक्शन कौन से है जो ट्रांसफर का काम कर रहे हैं, जहां से आपका डेटा कॉपी और पेस्ट हो रहा है? की इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मूव ए कॉमा @r0, मूव @r1 कॉमा ए, ये सोर्स मेमोरी लोकेशन से एक्यूमुलेटर में जा रहा है, एक्यूमुलेटर से डेस्टिनेशन में जा रहा है। तो ये की इंस्ट्रक्शंस हैं जो ट्रांसफर का काम कर रहे हैं। और बाकी लूपिंग का काम कहां से कहां तक का हो रहा है? लूप जो बन रहा है आपका कहां से कहां हो रहा है? यहाँ पे ये इतना इंस्ट्रक्शन जो है वो आपका लूप में हो रहा है, यानी दोबारा बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है। ये इंस्ट्रक्शन दोबारा बार बार एग्जीक्यूट हो रहे हैं। आप डिक्रीमेंट जंप इफ नॉट 0 R7 को अप करके दोबारा वो काम कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं लूप। तो ये लूपिंग इंस्ट्रक्शन आ गया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। दिस इज द प्रोग्राम ऑफ योर ट्रांसफर ऑफ ब्लॉक ऑफ 10 बाइट्स। फिर ऐसे ही यहाँ पे भी कोई दूसरा प्रोग्राम भी दिया हुआ था। एज्यूम इंटरनल रैम मेमोरी कंटेन्स द फॉलोइंग डेटा। एज्यूम कर लो इंटरनल रैम मेमोरी कुछ डेटा कंटेंट करता है। क्या डेटा कंटेंट करता है? फॉलोइंग डेटा ये है, दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है। 40H में 76 है, 41H मेमोरी लोकेशन पे 79 है, 42H पे RG लिखा हुआ है, कुछ पता नहीं क्या लिखा हुआ है, 43H पे 65 लिखा हुआ है, 44H पे 62 लिखा हुआ है। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? राइट 8051 असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू सर्च फॉर वैल्यू इक्वल टू 65। तो आपको प्रोग्राम लिखना है काय के लिए? वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो 65 के बराबर हो। इफ द वैल्यू 65 एग्जिस्ट इन द टेबल देन स्टोर इट R4। और अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट होती है तो उस वैल्यू को 65 को आपको स्टोर करना है कहाँ पे? रजिस्टर R4 पे। और अगर वो वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट देन मेक R4 इक्वल टू 0। और अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होती है तो आपको R4 को क्या मेंटेन करना है? 0 ही मेंटेन करना है। तो यहाँ पे कुछ मेमोरी लोकेशन में डेटास दिए हुए थे, तो उन डेटा में ये 5 डेटा में 5 मेमोरी लोकेशन के ये डेटा दिए हुए। अब आपको सर्च करना है कि कौन से मेमोरी लोकेशन पे 65 है और वो 65 को सर्च करके आपको भेजना है R4 पे। ठीक है, तो ऐसा प्रोग्राम आपको दिया हुआ है यहाँ पे करने के लिए। तो इनिशियलाइज किया आपने ORG 0000H से, फिर आपने पहले ही यहाँ पे काउंटर का इस्तेमाल कर लिए, मूव R2 05H। आपने यहाँ पे अब R2 रजिस्टर को एज अ काउंटर यूज किया, क्योंकि 5 डेटा बाइट्स है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 डेटा बाइट्स के बीच में ही आपको कंपेयर करना है कि किसमें आपका वैल्यू 65 निकलता है। तो ये 5 डेटा बाइट जो मेमोरी लोकेशन में रखा हुआ है उनमें कंपेयर करना है किसमें 65 है, और उस 65 को उठा के आपको R4 में भेजना है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले R2 में ही लोड कर दिए 05, तो R2 को आपने एज अ काउंटर यूज कर दिए। अब R4 को इनिशियली आपने 00 से लोड किया है, क्योंकि जब 65 मिलेगा तब आपको करना है, अदरवाइज 65 नहीं मिलेगा तो उसको 0 ही रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला हुआ है, इफ वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट इन द टेबल देन मेक R4 0। अगर वो टेबल में वो वैल्यू 65 नहीं मिलती है तो आप फिर R4 को 0 ही रखना है। हमने क्या किए, R4 को पहले से ही इनिशियलाइज करके रख दिए 00H से। ठीक है, और फिर इसके बाद आपने R1 को एज अ पॉइंटर यूज करोगे जहां से डेटा उठाना है कंपेयर करने के लिए। तो 40H से डेटा आपका रखा हुआ है, 5 डेटा 40, 41, 42, 43, 44। तो 40 से लेके 44 मेमोरी लोकेशन में आपके 5 बाइट्स रखे हुए। उन 5 बाइट में 65 कौन सा है वो ढूंढ के निकालना है और उसको R4 में भेजना है। तो हमने R1 को इनिशियलाइज किया 40H मेमोरी लोकेशन, यानी 40H डेटा इमीडिएटली R1 में लोड किए। अब देखो यहाँ पे आगे इंस्ट्रक्शन, ये देखो मैं जिसकी बात कर रहा था आपसे, कंपेयर जंप इफ नॉट इक्वल। क्योंकि आपको अभी क्या करना है, कंपेयर करना है ना, क्या ढूंढना है आपको कि 65 डेटा निकलना चाहिए। कंपेयर करो इन सब के डेटा के बीच में, जिसके पास 65 है वो इक्वली निकाल के उसको आप कहाँ पे भेज दो, R4 रजिस्टर में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर ही करना पड़ेगा ना। तो इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, कंपेयर जंप इफ नॉट इक्वल। तो कंपेयर करेगा और जब इक्वल नहीं रहेगा तो जंप करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 65 किसके साथ कंपैरिजन करना है, आपको कौन सा नंबर ढूंढना है, 65 ढूंढना है ना। तो ये 65 के साथ में इमीडिएट डेटा के साथ में क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है किसका, @R1। तो @R1 यानी R1 जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसका डेटा और इमीडिएट डेटा 65, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा। और कंपेयर करके अगर इक्वल नहीं होते तो ये जंप करेगा कहाँ पे, नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट आपका इधर पे, नेक्स्ट कहाँ पे आपका इधर पे, इंक्रीमेंट R1।
मान के चलो अभी पहला मेमोरी लोकेशन में डेटा क्या आया है 76, ओके। तो पहला डेटा क्या है आपका मेमोरी लोकेशन में 76, तो कंपेयर जंप इफ नॉट इक्वल @r1, यानी r1 जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसका डेटा और इमीडिएट डेटा 65 दोनों के बीच में कंपेयर होना है। तो r1 में क्या है 76 और इमीडिएट डेटा क्या है 65, दोनों में बीच में कंपेयर हुआ। कंपेयर होके क्या इक्वल है क्या? नहीं है, इक्वल नहीं है। तो कहाँ पे जंप करेगा? नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट आपका इधर पे, इधर पे नेक्स्ट यहाँ पे है। आप क्या कर रहे हो? इंक्रीमेंट R1। अब R1 को आपने बढ़ा दिया 40H से, क्या हो जाएगा अभी आपका नेक्स्ट डेटा किस में आएगा 41H। फिर आप क्या कर रहे हो? डिक्रीमेंट जंप इफ नॉट 0 R2। आप काउंटर को डिक्रीमेंट कर रहे हो, 5 के बाद कितना हो जाएगा ये 4। तो क्या वो 0 हुआ? नहीं हुआ। तो कहाँ पे जंप करेगा? बैक, वापस से आप कंपेरिजन पे आ गए। कंपेयर करो। अब कंपेयर करेंगे तो दूसरा डेटा के साथ में कंपेयर हो रहा है। दूसरा डेटा क्या आपका 79। तो 79 और 65 क्या इक्वल है? नहीं इक्वल है। तो वापस से कहाँ पे जंप करेगा? नेक्स्ट, वापस से नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे आप 42। तो 42 पे आया, 42 पे जो डेटा है फिर वो डिक्रीमेंट जंप इफ नॉट 0 हुआ, 4 से ये 3 हुआ, वापस बैक गया। अब इसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, दोबारा कंपैरिजन करके इक्वल नहीं हुआ तो दोबारा यहाँ पे नेक्स्ट पे जंप करेगा, इंक्रीमेंट R1। अब R1 किसको पॉइंट करेगा? 43 पे। अब R1 में क्या आ गया 43H। डिक्रीमेंट जंप इफ नॉट 0 R2 हुआ, R2 में 3 था, 3 से कितना हुआ 2, दोबारा ये 0 नहीं हुआ तो बैक होएगा यहाँ पे। अब देखो इधर पे ध्यान से, प्लीज पे अटेंशन। अब आपके पास R1 किसको पॉइंट कर रहा है? 43H को। R1 43H को पॉइंट कर रहा है। 43H में डेटा कितना है? 65। तो ये 65, ये 65 दोनों इक्वल हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, सॉरी इंस्ट्रक्शन क्या था? कंपेयर जंप इफ नॉट इक्वल। तो जब इक्वल हो जाएगा तो ये जंप नहीं करेगा, यहाँ पे जंप नहीं करेगा, नेक्स्ट पे जंप नहीं करेगा। जब इक्वल हो गया यानी ये 65, ये 65 अब सेम हो गया, इक्वल हो गया, तो अब यहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आएगा। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आया तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आपको क्या करना था? जो 65 है उसको कहाँ पे भेजना है? R4 पे ना। यही तो क्वेश्चन में बोला गया था, अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट होती है, उन टेबल में वो वैल्यू एग्जिस्ट होती है, तो जाके आप 65 को भेजो कहाँ पे? R4 पे। देन स्टोर इट इन वैल्यू इन R4। तो यहाँ पे कंपैरिजन करके अगर इक्वल होता है तो मतलब वो वैल्यू 65 है और वो 65 को आप भेज रहे हो R4 रजिस्टर में। तो R4 में चला गया, फिर दोबारा ये इंस्ट्रक्शन पे आएगा इंक्रीमेंट R1। अब नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा 44H। फिर डिक्रीमेंट जंप इफ नॉट 0 R2 को वापस से डिक्रीमेंट किया। अब 1, अब यहाँ पे 2 था, 2 से फिर क्या हुआ? 1 हुआ, 1 होके फिर ऊपर गया क्योंकि इक्वल नहीं हुआ था ना, 0 नहीं हुआ था, 0 नहीं हुआ तो वापस से गया। फिर वापस से कंपैरिजन होगा। अब कंपैरिजन में देखो यहाँ पे 62 है, तो 62 का कंपैरिजन 65 से हो गया, क्या इक्वल है? क्या नहीं इक्वल है। तो कहाँ पे जंप करेगा? नेक्स्ट पे। यहाँ पे आएगा इंक्रीमेंट R1, 44 से 45 हो जाएगा। डिक्रीमेंट जंप इफ नॉट 0, अब 1 से क्या हो जाएगा? 0। तो अब यहाँ पे आपका R2 0 हो चुका है, तो नीचे आ जाएगा शॉर्ट जंप ईयर कॉमा ईयर। तो ये शॉर्ट जंप ईयर कॉमा ईयर भी एंड स्टेटमेंट की जगह पे यूज होता है, प्लीज पे अटेंशन। शॉर्ट जंप ईयर कॉमा ईयर जब आप यहाँ पे भी स्टेटमेंट यूज कर सकते हो एंड की जगह पे, क्योंकि ये शॉर्ट जंप कहाँ पे जंप कर रहा है? ईयर, यानी बाजू में ही जंप कर रहा है, यानी ये कंटिन्यूसली यहीं पे चलता रहेगा और फिर एंड हो जाएगा प्रोग्राम आपका। शॉर्ट जंप ईयर, तो ईयर कहाँ पे? इधर ही बाजू में ही है, तो ये क्या हो गया? आपका एंड हो गया प्रोग्राम। तो एंड की जगह पे आप ये स्टेटमेंट को भी यूज कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से कंपेयर जंप इफ नॉट इक्वल, यहाँ पे इक्वालिटी का कंपैरिजन कर रहा है। जब तक इक्वल नहीं होता तो वो जंप करेगा, जब इक्वल हो जाएगा तो इधर पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसके लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग स्मॉलेस्ट नंबर इन अ गिवन सेट ऑफ 5 नंबर्स। और इसी तरीके से प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग लार्जेस्ट नंबर भी है, स्मॉलेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर भी है। और ये सब मैनुअल में प्रोग्राम भी है, प्रैक्टिकल का भी है। ये सब स्टार्टिंग के जो 5-6 आपके प्रैक्टिकल्स है माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट में, वो प्रोग्राम से रिलेटेड है। और प्रोग्राम में यही सब है, ब्लॉक ट्रांसफर, लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ये सब प्रोग्राम्स आपके इसमें दिया हुआ है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा फास्टली कवर कर रहा हूँ ताकि मुझे वो प्रैक्टिकल में थोड़ा कवर करना है उसको। तो नेक्स्ट प्रोग्राम पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ गिवन सेट ऑफ 5 नंबर्स। अब आपको क्या करना है, गिवन सेट ऑफ 5 नंबर्स दिया हो रहेगा, उन गिवन सेट ऑफ 5 नंबर्स में जो स्मॉलेस्ट नंबर है उस स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड करना है। स्मॉलेस्ट नंबर को क्या करना है? फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी जो इंस्ट्रक्शन यूज होने वाला है ना, अब जब देखो कंपैरिजन की बात होती है ना कभी भी,
अब स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है, लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है, तो वो सब के लिए आपको कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ेगा, CJNE, कंपेयर जंप इफ नॉट इक्वल। जब तक आप कंपेयर नहीं करोगे तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि छोटा है कि बड़ा है कि सेम है क्या है। तो ये क्वेश्चन में भी आपको क्या करने के लिए बोला गया है, आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे वही यूज करना पड़ेगा, कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ेगा, कंपेयर जंप इफ नॉट इक्वल वाला इंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं, प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं। ORG0000S से इनिशियलाइज किया अपने प्रोग्राम को, ORG00 फर्स्ट मेमोरी लोकेशन से आपने स्टार्ट किया। फिर इसके बाद देखो मूव R0,40H। अब यहाँ पे आपको प्रोग्राम में स्टेटमेंट में कहीं दिया हुआ नहीं था कि आपका जो डेटा है वो मेमोरी लोकेशन यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। आप एज्यूम कर सकते हो, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ होता कि 40H से लेके 44H में 5 बाइट है, उसके बीच में स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो वैसा भी चल सकता था। लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो यू कैन एज्यूम, यू कैन टेक एनी मेमोरी लोकेशन। तो यहाँ पे हम लोग अपने प्रोग्राम में जो मेमोरी लोकेशन ले रहे, कंसिडर कर रहे हैं, जहाँ पे आपके 5 बाइट्स स्टोर है, 40 से लेके 44H में स्टोर है। तो यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं पहले मेमोरी लोकेशन से R0,40H। तो हमने R0 में क्या लोड किया, इमीडिएटली 40H, ताकि जहाँ पे डेटा आपका पहला डेटा है वो 40H पे है। फिर आपने क्या यूज किया, काउंटर का इस्तेमाल किया, मूव R1,05H। मैं बता रहा हूँ आप R1 यूज करो, बेटर ये है कि आप R7 रजिस्टर को यूज करा करो। सबसे ज्यादा बेटर ये होता है कि जब भी आप काउंटर का इस्तेमाल करो ना, तो कौन सा रजिस्टर को यूज करो, R7। क्यों? क्योंकि R1 को आप यूज कर सकते हो एज अ पॉइंटर के लिए, क्योंकि मेमोरी पॉइंट करने के लिए सिर्फ R0 R1 रजिस्टर ही यूज होते हैं, उसके अलावा और कोई दूसरा रजिस्टर नहीं यूज होता है। तो इंस्पाइट ऑफ यूजिंग R1 बेटर यूज R7 ओनली। तो यहाँ पे प्रोग्राम में आपको R1 यूज करने के लिए बोला गया एज अ काउंटर, तो ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे R1 का इस्तेमाल ही नहीं, इसलिए R1 को एज अ काउंटर यूज किया है। तो यहाँ पे R1 में इमीडिएटली आपने क्या लोड किया, 05H एज अ काउंटर, काउंट करने के लिए 5 बाइट के बीच में कंपैरिजन करना है स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हो गया आपका R1 एज अ काउंटर 05H। अब देखो मूव A,#0FH आप एक्यूमुलेटर में इमीडिएटली क्या लोड कर रहे हो, FFH लोड कर रहे हो, FFH। वाई FFH? क्योंकि सबसे बड़ा नंबर जो 8 बिट में सबसे बड़ा नंबर है, 8 बिट डेटा में 1 बाइट में जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है, FFH। अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए उसको सबसे बड़े नंबर से कंपेयर करेंगे तभी तो मिल पाएगा ना। अब FF से कोई बड़ा नंबर हो सकता है क्या 1 बाइट में? FF से कोई बड़ा नंबर नहीं हो सकता 1 बाइट में। 8 बिट डेटा में FF से कोई बड़ा नंबर नहीं है। इसलिए जब हमको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो जो कंपैरिजन करना पड़ेगा उसको सबसे बड़े नंबर से कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो सबसे बड़े नंबर से कंपैरिजन करने के लिए हमने एक्यूमुलेटर में इमीडिएटली जो लोड किया है, ताकि जब कंपैरिजन होगा एक्यूमुलेटर से और जब मेमोरी के कंटेंट से, तो वो किसके बीच में होगा, FFH के बीच में होगा, और उस बीच में होगा जो नंबर आपने स्टोर, जो नंबर के बीच में आपको स्मॉल नंबर फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसलिए हम लोग ने एक्यूमुलेटर में क्या लोड किया है, वो 8 बिट डेटा जो सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा 8 बिट डेटा क्या है, FFH। अच्छा, आपके दिमाग में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा, सर ये आगे 0 क्यों आया, वाई आगे 0? ये FFH तो समझ में आया, ये FFH के आगे 0 क्यों लिखा हुआ है? तो इसका रीज़न भी मैं क्लियर कर देता हूँ। जब आप प्रोग्रामिंग करते हो, कील सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो या माइक्रो कंट्रोलर का जब भी यूज़ करते हो, तो अगर इमीडिएट डेटा में जब भी अल्फ़ाबेट यूज़ होता है, तो अल्फ़ाबेट यूज़ होने के पहले आपको 0 यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करता है, वो अल्फ़ाबेट्स को कंसिडर नहीं करता है अंदर कील सॉफ्टवेयर। तो व्हेनेवर यू यूज़ प्रोग्रामिंग और डेटा में जब भी आपका अल्फ़ाबेट आता है, अगर ये F की बात नहीं चल रही है, अगर A आ जाए, B आ जाए, C आ जाए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इधर पे आगे प्रिकॉशनरी क्या यूज़ करना पड़ेगा, 0 भी यूज़ करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, ताकि ये अल्फ़ाबेट्स को कंसिडर करे एज अ डेटा में। हम डायरेक्टली FFH लिखेंगे तो वो इंटरनली वो एक्सेप्ट नहीं करेगा FFH। डेटा में कभी भी अल्फ़ाबेट जब आता है, तो अल्फ़ाबेट के आगे आपको क्या यूज़ करना है, 0 का यूज़ करना है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड माइक्रो कंट्रोलर कीज सॉफ्टवेयर प्रॉपरली, दैट इज अल्फ़ाबेट इज डेटा, ये डेटा है, ठीक है। अदरवाइज वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा। तो एज अ प्रिकॉशनरी, तो प्रिकॉशनरी पर्पज़ के लिए हम लोग इस डेटा में जो स्टार्टिंग में अल्फ़ाबेट होता है उसके आगे क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। तो ये 0 लगाया हुआ है,
बाकी आपका डेटा जो है वो FFH ही है, ठीक है। तो हमने एक्यूमुलेटर में क्या लोड किया, FFH लोड किया, सबसे बड़ा नंबर, और मूव बी कॉमा @R0। अब R0 जिसको पॉइंट कर रहा है उसका डेटा कहाँ पे ले लिया हमने, बी रजिस्टर में। तो R0 किसको पॉइंट कर रहा था, 40H। तो 40H यानी पहला डेटा, स्मॉलेस्ट नंबर में से पहला डेटा जो है 5 बाइट में से जो पहला डेटा है 40H से उठा के आपने उसको कहाँ पे लेके आ गए, बी रजिस्टर में लेके आ गए। अब देखो ये इंस्ट्रक्शन काम कर रहा है अपना वो कंपैरिजन वाला, कंपेयर जंप इफ नॉट इक्वल ए कॉमा बी। तो ए में जो डेटा है यानी बड़ा डेटा FFH, और बी में जो डेटा है जो 40H का डेटा आया आपका 40H मेमोरी लोकेशन का, उन दोनों के बीच में कंपेयर होता है। उन दोनों के बीच में क्या होता है, कंपेयर होता है। और ये मैंने आपको एक चीज़ क्लियर किया था, मैंने समझाया था जब कंपेयर जंप इफ नॉट इक्वल का इंस्ट्रक्शन एक्सप्लेनेशन दिया था। यहाँ पे बताया था कि ये जो कंपेयर करता है ना एक्चुअल में दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन करता है। कंपैरिजन मतलब क्या, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होता है, a माइनस बी होता है। तो a माइनस बी हो गया, अगर पहला वाला नंबर बड़ा है छोटे वाले से, फॉर एग्जाम्पल a इज ग्रेटर देन b, तो कैरी जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर a लेसर देन b होगा तो कैरी जनरेट होगा। देखो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंपेयर होता है, कंपेयर होके क्या होता है वो एक्चुअल में वो क्या होता है, वो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन होकर कैरी जनरेट हुआ कि नहीं हुआ। कैरी कब जनरेट होगा, जाहिर सी बात है जब ऊपर वाला नंबर छोटा होगा दूसरे वाले नंबर से। यानी आप a माइनस बी कर रहे हो, तो a माइनस बी करने में अगर b वाला आपका छोटा हो गया, b वाला आपका बड़ा हो गया a वाले से, तो कैरी जनरेट होगा ना, बोरो करना पड़ता है, बोरो लेना पड़ता है। तो यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, कंपेयर a एंड b इफ a इज लेसर देन b। अगर आपका b वाला नंबर ग्रेटर रहेगा a वाले से, तो आपका क्या सेट होगा, कैरी सेट होगा, कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और अगर a वाला नंबर ग्रेटर रहता है b से तो कैरी सेट नहीं होगा। तो इस चीज से हमको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा वाला नंबर बड़ा है, कौन सा वाला नंबर छोटा है, और अकॉर्डिंगली वो हिसाब से हम लोग काम करेंगे, अकॉर्डिंगली वो हिसाब से काम करेंगे। तो अभी आपने क्या किया था, एक्यूमुलेटर में कौन सा डेटा लेके आया हुआ है, सबसे बड़ा नंबर FFH। अब FFH से कोई बड़ा नंबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो एक्यूमुलेटर में FFH सबसे बड़ा नंबर है। डी में क्या है आपका, जो फर्स्ट डेटा मेमोरी लोकेशन का फर्स्ट डेटा है 40H में, जो आपका फर्स्ट डेटा है वो आपने क्या किया, बी रजिस्टर में लेके आए। अब दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, कंपेयर जंप इफ नॉट इक्वल। अगर इक्वल नहीं है तो जंप करेगा, कहाँ पे जंप करेगा, नीचे, कहाँ पे, डाउन। डाउन कहाँ पे, उसके बाजू में ही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि देखो ये इंस्ट्रक्शन ऐसा है कि उसको जंप करना ही करना है। नॉट इक्वल पे वो क्या करेगा, जंप ही करेगा। तो हम इसको जंप भी जो करा रहे हैं ना वो नीचे के इंस्ट्रक्शन में ही करा रहे, नीचे के इंस्ट्रक्शन में ही करा रहे, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन ही ऐसा है, कंपेयर जंप इफ नॉट इक्वल, क्योंकि इसको जंप करना ही रहेगा नॉट इक्वल होने पे। और हमारा टास्क ही ऐसा है कि हमको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे ही जाना है, नीचे के काम में ही करना है। तो हमने डाउन पे ही जंप किया, इधर पे ही जंप किया। तो जंप डाउन जो है वहां पे स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ, जंप इफ कैरी। अगर कैरी जनरेट होता है तो जंप करे, जाहिर सी बात है कैरी जनरेट होगा ही नहीं, कैरी जनरेट होगा ही नहीं। क्यों कैरी जनरेट होगा नहीं बताओ, क्योंकि ए वाला जो नंबर है वो बड़ा है ना बी वाले से। ए वाला नंबर वो क्या है, बड़ा है बी वाले नंबर से। अगर मान के चलो ऐसा होता कि अगर बी वाला नंबर बड़ा होता ए से, तो फिर वो काम क्या करता, फिर वो रिप्लेस कर देता, कैरी जनरेट नहीं होता। और कैरी जनरेट नहीं होता तो ये यहाँ पे टास्क अचीव होता। आप क्या करते, वो बी वाला नंबर बड़ा था, तो बी वाला नंबर बड़ा था यानी मान रहे हम लोग कि FF से भी कोई बड़ा नंबर हो सकता है, तो बी वाला जो नंबर बड़ा था उसको एक्यूमुलेटर में लेके आ गए, उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया एक्यूमुलेटर में। तो इसके लिए स्टेटमेंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जंप इफ कैरी। तो जंप इफ कैरी, तो कैरी जनरेट होगा ही होगा। क्यों क्यों जनरेट होगा, क्योंकि आपका सॉरी कैरी जनरेट नहीं होगा, मैं यहाँ पे उल्टा बोल रहा था, कैरी जनरेट नहीं होगा। क्यों जनरेट नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका जो बी वाला जो नंबर है वो क्या होगा, छोटा ही होगा ना एक्यूमुलेटर से, क्योंकि एक्यूमुलेटर में आपने क्या लोड किया हुआ है, FFH। एक्यूमुलेटर में आपने क्या लोड किया हुआ है, FFH। तो एक्यूमुलेटर में FFH सबसे बड़ा नंबर है, और बी में जो है वो आपका 40H का डेटा है। तो वो क्या है आपका, हमेशा वो क्या रहेगा, वो बी वाला नंबर जो है वो एक्यूमुलेटर वाले नंबर से क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट हम लोग ने लिखे है जंप इफ कैरी, तो क्या कैरी जनरेट होने वाला है, नहीं जनरेट होने वाला है, कैरी जनरेट नहीं होगा। जंप इफ कैरी, तो यहाँ पे अगर कैरी जनरेट होगा तो जंप करेगा, कैरी जनरेट नहीं हुआ तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, बी कॉमा ए। यानी अब क्या करो, जो बी का जो नंबर है अब आपने उसको उठा के क्या कर दिया, एक्यूमुलेटर में लेके आ गए। तो बी से आपने उसको कहाँ पे लेके आया, एक्यूमुलेटर में। फिर आपने इंक्रीमेंट R0 किए, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करने के लिए इंक्रीमेंट R0 किए।
फिर आपने डिक्रीमेंट जंप इफ नॉट जीरो किए, ये जो काउंटर था काउंटर से डिक्रीमेंट किए, 5 से उसको क्या किए 4 किए, और फिर अप जंप करे, यानी वापस से अगर ये जीरो नहीं हुआ है तो ऊपर जंप करे। फिर आपने क्या किया, अब जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है 41H का डेटा कहाँ पे आ गया, बी में आ गया, तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का डेटा बी में आ गया, और जो पहला मेमोरी लोकेशन का डेटा था वो आपने शफल कर दिया, उसको किस में लेके आ गए, एक्यूमुलेटर में लेके आ गए, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में आपने ऐसा लिखे थे जंप इफ कैरी, तो कैरी जनरेट होती तो वो काम होता, वो जंप करता स्मॉल पे यहाँ पे, लेकिन कैरी जनरेट नहीं हुआ तो आपने क्या किया, बी का डेटा कहाँ पे लेके आ गए थे, एक्यूमुलेटर में। तो बी का डेटा एक्यूमुलेटर में लेके आ गए थे, मतलब फर्स्ट मेमोरी लोकेशन का डेटा एक्यूमुलेटर में आ गया है, 40H का डेटा एक्यूमुलेटर में आ गया। तो ये काम आपका हो गया इधर पे। इस तरीके से ये क्या होगा, अभी दो नेक्स्ट डेटा के बीच में कंपैरिजन होगा, फिर वही सेम प्रोसीजर होगा। इस तरीके से ये कंपैरिजन चलता रहेगा। इन दी एंड लास्ट में आपको क्या मिलेगा, इन दी एंड लास्ट में आपको एक्यूमुलेटर में वो लास्ट में आपको स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा, और वो स्मॉलेस्ट नंबर को आपने कहाँ पे भेज दिए, 50H मेमोरी लोकेशन पे। तो एक्यूमुलेटर से आपने उसको कहाँ पे भेज दिए, 50H मेमोरी लोकेशन पे। तो इस तरीके से ये पूरा काम लूपिंग में हो रहा है, और ये मेन इंस्ट्रक्शन ये कंपेयर जंप इफ नॉट इक्वल। तो जब आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो इनिशियली आपको एक्यूमुलेटर को लोड करना पड़ेगा सबसे बड़े नंबर से। स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको एक्यूमुलेटर को लोड करना पड़ेगा सबसे बड़े नंबर से, तब कंपैरिजन करके तभी तो ढूंढ पाओगे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, तो जैसे जैसे स्मॉलेस्ट नंबर होता जाएगा, मिलता जाएगा, वैसे वैसे आप उसको रिप्लेस करते जाओगे एक्यूमुलेटर में, और इन दी एंड लास्ट में आपको एक्यूमुलेटर में वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिल ही जाएगा। आप कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर करके शफल भी कर रहे हो। अब ए और बी के बीच में कंपेयर किए तो जाहिर सी बात है बी का नंबर ए से छोटा ही रहेगा, तो आपने फिर घुमा के उसको एक्यूमुलेटर में ले लिए। अब एक्यूमुलेटर में आ गया आपका नया छोटा नंबर। तो इसी तरीके से हर बार कंपैरिजन होगा, हर बार कंपैरिजन होके इन दी एंड लास्ट में आपका एक्यूमुलेटर सबसे छोटा नंबर को ही रखेगा, और वो सबसे छोटा नंबर जो आपका मिला उसको आप भेज रहे हो कौन सा मेमोरी लोकेशन पे, 50H पे। तो 50H पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द 5 नंबर। और ये एंड करने का तरीका होता है शॉर्ट जंप डॉलर करके भी आप ईयर कॉमा ईयर भी लिख सकते हो, शॉर्ट जंप ईयर कॉमा ईयर, ये एंड स्टेटमेंट होता है, और ये भी एंड का स्टेटमेंट यहाँ पे एंड होता है। तो ये प्रोग्राम में था आपका स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने का। अगर यही प्रोग्राम में चेंज कर देगा लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करने का, तो लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, व्हाट आर द चेंजेस यू हैव टू डू फॉर लार्जेस्ट नंबर। ये आपने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट किए, अगर स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना होता तो क्या क्या करना पड़ता, कौन बताएगा मुझे। मूव वेव को चेंज करना पड़ता, मूव ए को चेंज करना पड़ता। सबसे पहले आप तो ये बताओ, ये जो मूव ए कॉमा है 0FFH है, उसकी जगह पे क्या था। अगर आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे छोटे नंबर से कंपेयर करना पड़ेगा ना। तो 8 बिट में सबसे छोटा नंबर क्या है, जैसे यहाँ पे FFH सबसे बड़ा नंबर है ना, तो मैं वही पूछ रहा हूँ फिर लार्जेस्ट नंबर प्रोग्राम में फाइंड आउट करने के लिए। हाँ बराबर है, लेकिन 4 जीरो नहीं 2 ही जीरो यूज होगा। 8 बिट की बात कर रहा हूँ, तो 8 बिट में जो छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर वो क्या है आपका 00H। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर जो है वो क्या है 00H। तो आपको एक्यूमुलेटर को लोड करना पड़ेगा किससे, 00H। तो क्या कि आप छोटे नंबर से कंपेयर करोगे, सबसे छोटे नंबर से कंपेयर करोगे, तब तो जाके आपको बड़ा नंबर मिलेगा। और यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे जंप इफ कैरी की जगह पे क्या यूज करोगे, जंप इफ कैरी की जगह पे वहां पे क्या यूज करना पड़ेगा, जंप इफ नॉट कैरी, क्या यूज करना पड़ेगा, जंप इफ नॉट कैरी, क्योंकि आपको कंपेयर करना है और क्या फाइंड आउट करना है, कौन सा वाला नंबर फाइंड आउट करना है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो एक्यूमुलेटर में आपने क्या लोड किए 00, और बी में आपका क्या रहेगा, फर्स्ट मेमोरी लोकेशन का डेटा रहेगा। तो हमेशा आपका कैरी जनरेट नहीं होना चाहिए, तब जाके आपको क्या मालूम पड़ेगा आपका कि हाँ ये जो नंबर है वो आपका क्या है, ये बड़ा नंबर है। तो वो हमेशा हर बड़ा नंबर फिर क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। तो दो चेंजेस लगेंगे आपको लार्जेस्ट नंबर के प्रोग्राम करने में, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट करने में। एक तो यहाँ पे आपको 00 लोड करना पड़ेगा, और JC की जगह पे आपको खाली क्या लगेगा, JNC। जंप इफ कैरी की जगह पे आपको क्या लगेगा, जंप इफ नॉट कैरी। तो ये प्रोग्राम बन जाएगा आपका, कौन सा प्रोग्राम बन जाएगा, लार्जेस्ट का। आई होप आप लोगों को समझ, देखो ये यही है, मैं आपको बताया लार्जेस्ट नंबर इसके बाद ही का प्रोग्राम था, इसके बाद वाला प्रोग्राम लार्जेस्ट का ही था। देखो एक्यूमुलेटर में क्या किया है, 00H से लोड किया, और मैं जो आपको बोल रहा था JC की जगह पे क्या यूज होगा, JNC। बाकी पूरा प्रोग्राम सेम है,
पूरा प्रोग्राम सेम है। जेसी की जगह पे क्या यूज हो गया, जंप इफ कैरी की जगह पे क्या यूज हो गया, जंप इफ नॉट कैरी। किसके लिए, लार्ज। अगर वो लार्ज है, अगर वो लार्ज है तो क्या होगा, कैरी जनरेट नहीं होगा। अगर वो लार्ज है तो कैरी जनरेट नहीं होगा, इसलिए अपना आगे नॉर्मल काम करते रहो। लेकिन अगर वो लार्ज नहीं होता तो कैरी जनरेट होता, तो आपको शिफ्ट करना पड़ता, बी से वापस से एक्यूमुलेटर में नया नंबर लार्जेस्ट नंबर से रिप्लेस करना पड़ता, बी का नंबर उठा के एक्यूमुलेटर में भेजना पड़ता। तो ये सब है फंडा इस तरीके से। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया क्या आप लोगों को, गया क्या भेजे में गया? यस सर। एटम एमसीक्यू सेट 1, क्या एमसीक्यू सेट 1 देख लेता हूं मैं। ओके, एमसीक्यू सेट 1 में पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जेजेड जेएनजेड इंस्ट्रक्शन चेक्ड कंटेंट ऑफ डैश रजिस्टर। जंप इफ जीरो, जंप इफ नॉट जीरो इंस्ट्रक्शन चेक्ड कंटेंट ऑफ डैश रजिस्टर। कौन सा रजिस्टर का कंटेंट चेक करता है ये? जंप इफ जीरो, जंप इफ नॉट जीरो, डेटा पॉइंटर, एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, बी रजिस्टर। जल्दी से बताओ। अगर सिर्फ लिखा हुआ ये, सिर्फ ये लिखा हुआ है जंप इफ जीरो और जंप इफ नॉट जीरो, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये कौन से रजिस्टर का कंटेंट चेक कर रहा है? कौन सा रजिस्टर का जीरो चेक कर रहा है? जंप इफ जीरो, अगर जीरो नहीं हुआ है तो जंप करे, अगर जीरो हुआ है तो जंप करे, जीरो नहीं हुआ है तो जंप करे। तो कौन सा रजिस्टर का चेक कर रहा है अगर सिर्फ इतना लिखा हुआ है, जे जेड और जे एंड जेड? टेल मी प्लीज फास्ट। एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर, वेरी गुड, बात बराबर है, समझ में आई। अगर आपका सिर्फ इतना लिखा हुआ रहेगा जंप इफ जीरो, तो मतलब वो एक्यूमुलेटर का कंटेंट चेक कर रहा है, अगर वो जीरो है तो जंप करेगा। जंप इफ नॉट जीरो सिर्फ इतना लिखा हुआ है तो मतलब वो किसका चेक कर रहा है, एक्यूमुलेटर का ही चेक कर रहा है। अगर एक्यूमुलेटर कंटेंट नॉट जीरो है तो वो जंप करेगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ए, एक्यूमुलेटर। सेकेंड, इफ वी पुश डेटा ऑन टू द स्टैक देन स्टैक पॉइंटर क्या होता है? अगर हम लोग अपना डेटा स्टैक मेमोरी में पुश करते हैं, तो स्टैक मेमोरी में पुश करने में स्टैक पॉइंटर क्या होता है? इंक्रीजेस विद एवरी पुशेस, डिक्रीजेस विद एवरी पुश, इंक्रीज एंड डिक्रीज विद एवरी पुश, रिमेन सेम। ये मैं बता चुका था। पुश करने में स्टैक पॉइंटर हमेशा क्या होता है, बढ़ता है या घटता है? टेल मी फास्ट। अगर आपको अपना डेटा इंटरनल मेमोरी से स्टैक मेमोरी में भेजना है, तो स्टैक मेमोरी में भेजने पे स्टैक पॉइंटर क्या होता है, अपने आप को इंक्रीमेंट करता है ऑटोमेटिकली, डिक्रीमेंट करता है, या वैसे ही रहता है एज इट इज, या दोनों करता है, अपने आप को इंक्रीज और डिक्रीज करता है? विच इज द आंसर प्लीज टेल मी। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन सा है? टेल मी फास्ट। स्टैक मेमोरी वाला बता चुका, पुश इंस्ट्रक्शन, पॉप इंस्ट्रक्शन, पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन बता चुका हूं मैं आपको, पुश एंड पॉप। तो हमेशा पुश करने में स्टैक पॉइंटर पुश करने के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली अपने आप को एक से इंक्रीमेंट करता है, SP+1 होता है, ये मैं बता चुका था आपको। और पॉप करने में हमेशा पहले अपने आप को पहले डिक्रीमेंट करता है, तब वो डेटा को पॉप करता है। तो पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन में बताया था, जब भी आपका डेटा इंटरनल रैम से स्टैक मेमोरी में जाता है, तो स्टैक मेमोरी में जाने के बाद स्टैक पॉइंटर ऑटोमेटिकली अपने आप को इंक्रीमेंट करता है 1 से। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आएगा इंक्रीजेस विद एवरी पुश। और जब आप पॉप करते हो, पॉप इंस्ट्रक्शन, पॉप का मतलब होता है जब स्टैक मेमोरी से अपना डेटा रिट्रीव बैक करते हो, तो उस टाइम पे सबसे पहले स्टैक पॉइंटर अपने आप को डिक्रीमेंट करता है, फिर उसके बाद में पॉप करता है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ये सब पुश एंड पॉप का क्या था। तो पुश वाले इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, स्टैक पॉइंटर अपने आप को इंक्रीज करता है, यानी इंक्रीमेंट करता है with every push instruction increment itself by the amount of 1. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन प्लीज, ये ध्यान से आज का, अगर आपने ये लूप समझ में आ गया, प्रोग्रामिंग समझ में आ गया, तो मतलब आपको ये जवाब दे दिए तो लूपिंग का प्रोग्राम समझ में आ गया। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है मूव R6, #200। यहाँ पे R6 में इमीडिएटली आप क्या लोड कर रहे हो, 200, ये डेसिमल का 200 है, हेक्साडेसिमल का होता तो H लिखा हुआ होता, यहाँ पे सिर्फ 200 लिखा हुआ है, मतलब ये डेसिमल नंबर 200 लोड कर रहे हो। नाउ द कंटेंट इमीडिएट डेटा जो है ना वो डेसिमल का है, डेसिमल 200 आपने इमीडिएटली लोड किया R6 में। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या लिखा हुआ है, मूव R5, #100,
और R5 में इमीडिएटली आपने क्या लोड की 100, R5 रजिस्टर में इमीडिएटली क्या लोड किया आपने 100, ये भी डेसिमल में। फिर आप नीचे लिख रहे हो डिक्रीमेंट जब इफ नॉट जीरो R5, आप R5 को डिक्रीमेंट कर रहे हो और जंप करना चाहिए अगर वो नॉन जीरो है, कहाँ पे जंप करना चाहिए, ईयर, तो ईयर तो बाजू में ही है, ईयर बाजू में ही है, यानी आप बार बार उसको क्या कर रहे हो, डिक्रीमेंट कर रहे हो। तो ये इंस्ट्रक्शन डिक्रीमेंट चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, जब तक का ये 100 से 0 नहीं होता है, जब तक का ये 100 से 0 नहीं होता है तो ये डिक्रीमेंट जंप इफ नॉट जीरो इधर ही पे जंप मारता रहेगा, डिक्रीमेंट करता रहेगा, क्योंकि R5 में आपने 100 से लोड किया और फिर आप नीचे स्टेटमेंट में लिख रहे हो उसको डिक्रीमेंट कर रहे हो, और वो डिक्रीमेंट होगा और जंप जब जब मारेगा जंप जब जब वो नॉट जीरो रहेगा, तो कहाँ पे जंप कर रहा है, बाजू में ही। अच्छा, फिर जब ये पूरा 100 से 0 हो जाएगा तो फिर नीचे आएगा, नीचे बढ़ेगा, आगे आएगा, नीचे क्या लिखा हुआ है, DJNZ R6। अच्छा, जो ऊपर आपने R6 को 200 से लोड किया था, अब वो डिक्रीमेंट होगा, वो डिक्रीमेंट होके अगर वो 0 नहीं है, जब तक नॉट 0 है तो वो जंप मारता रहेगा, कहाँ पे जंप मारता रहेगा, बैक, यहाँ पे बैक में क्या लिखा हुआ है, वापस से R5 को 100 से लोड करेगा, फिर दोबारा उसको डिक्रीमेंट करेगा, यानी ये लूप के अंदर लूप है, ये लूप के अंदर लूप है, एक तो लूप ये है और दूसरा लूप ये। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से इसका जो जवाब मुझे दे दिया तो मैं समझूंगा कि उसको लूप का प्रोग्रामिंग का मीनिंग समझ में आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द फॉलोइंग लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, तो आपसे क्वेश्चन ही यही पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है 100, 200, 20,000, 2000, तो टेल मी द करेक्ट आंसर, हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, कितने नंबर ऑफ टाइम लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, जल्दी से मुझे ऑप्शन दे दो। 200 टाइम, 2000 टाइम, 20,000 टाइम या 100 टाइम, 10 बी फास्ट, कितने नंबर ऑफ टाइम्स लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई बताएगा मुझे। अच्छा, एक चीज पूछता हूं आपसे, ये R6 का एक टाइम होना उतने में R5 का कितने टाइम होना, R6 का एक टाइम इक्वल टू R5 का कितना टाइम, हाफ टाइम, हाँ हाफ टाइम। अच्छे से बताओ यार, कितना बोल रहे हो यार, समझ में नहीं आ पा रहा है, मैसेज में लिख दो। R6 का एक टाइम एग्जीक्यूट होना इक्वल टू R5 का कितने टाइम पूरा एग्जीक्यूट होना, समझते हैं ना आप लोग को, दिखता है ना इधर पे, ये क्या काम कर रहा है, डिक्रीमेंट कर रहा है R6 को, डिक्रीमेंट कर रहा है R6 को, तो R6 में कितना था 200, 200 से कितना होगा 199, तो 199 से ये 0 नहीं हुआ तो जंप करेगा बैक, तो बैक में वापस से क्या हो रहा है, R5 में दोबारा आप कितनी बार लोड कर रहे हो 100, तो जब तक का ये 100 से 0 नहीं होगा तब तक बाहर आ पाएगा क्या, वापस से दोबारा R6 पे आ पाएगा क्या, आ पाएगा क्या, जब तक का ये R5 का पूरा 100 से 0 नहीं होता तो दोबारा R6 पे पहुंचेगा क्या डिक्रीमेंट करने के लिए, वापस से ये पूरा इसको लगेगा 100 मरतबा डिक्रीमेंट करने के लिए, यानी R6 का वन टाइम इक्वल टू R5 का कितने टाइम, इक्वल टू R5 का कितने टाइम, टेल मी। 2 टाइम, हाँ 2 टाइम। अबे 2 टाइम कहाँ से, ये लूप कितना है, R5 में कितना लोड कर रहे हो, R5 में कितना लोड, R5 में कितना लोड किया हुआ है, इमीडिएट नंबर कितना है 100। 100 है ना, तो जब तक का ये 100 दोबारा अपने आप को खत्म नहीं करेगा डिक्रीमेंट करके, तब तक यहाँ पे आ सकता है क्या, DJ100 R6 पे आएगा क्या, नहीं, यही पूरा 100 मरतबा फिर वापस से डिक्रीमेंट करेगा, फिर जब वो हो जाएगा 100 टाइम फिर नीचे आएगा, तो नीचे आके दोबारा डिक्रीमेंट जंप इफ नॉट जीरो R6, तो अब ये फॉर एग्जांपल 199 था तो 199 से डिक्रीमेंट होके 198 होगा, तो अब 198 होके वापस से बैक किया कहाँ पे, दोबारा R5 को 100 से लोड किया, अब फिर वापस से ये डिक्रीमेंट कर रहा है, तो फिर ये R5 डिक्रीमेंट कितनी टाइम होगा, 100 टाइम होगा, मतलब R6 का एक, R5 का कितना 100 टाइम, तो ऐसे ही R6 का कितना है 200,
तो 200 को मल्टीप्लाई करो किससे, 100 से। सो 200 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू कितना आता है, 200 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू कितना आता है, 20,000। 200 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू कितना आता है, 2000। 200 मल्टीप्लाई बाय 100 2000 होता है। 20,000. 200 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू कितना होता है, 20,000। तो 20,000 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आप जब भी देखो लूप के अंदर लूप था, तो ये ऊपर वाला लूप है 200, उसके अंदर वाला लूप है 100, यानी इसका एक, इसका अंदर का 100, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 20,000। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। जो क्वेश्चन आया था फाइंड द नंबर ऑफ लूप्स, तो कितनी मतलब लूप एग्जीक्यूट होगा, तो इस प्रोग्राम में जो लूप एग्जीक्यूट होगा वो 200 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 20,000 टाइम्स लूप एग्जीक्यूट होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो लेट अस सी द करेक्ट आंसर्स ऑप्शंस। तो पहले वाले का ऑप्शन बी यानी एक्यूमुलेटर, दूसरे वाले का ए इंक्रीजेस विद एवरी पुश, और तीसरे वाले का सी 20,000 में जो बताया आपको R5 R6 का एक इक्वल टू R5 का 100। तो अगर R6 200 है तो 200 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 20,000। तो इन दिस वे ये चीज़ आपकी यहाँ पे कंप्लीट हुई, एंड हुई। तो आई होप आप लोग को कोशिश किया मैंने समझाने की। इसके अलावा भी तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है, मैं प्रोग्रामिंग का पार्ट अब यहीं पे एंड कर दूंगा। आई विल स्टॉप द प्रोग्रामिंग पॉइंट, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूंगा मैं। हो गया यहाँ तक, प्रोग्रामिंग बहुत समझा लिया मैंने। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग, अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच।